ملک کی فیوچر ہے. یہ جو آپ نے آج کیا یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا. لیکن یہاں ہی نہیں, آپ نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جو ایک پوری جہاد کی, اس میں بھی جو آپ نے شرکت کی, اور یہ جو ایس او پیز, یہ جو آپ نے لوگوں کو بتایا, شعور پیدا کیا, اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. کیونکہ پاکستان آج وہ بڑے کم ملکوں سے ہے. ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے یہ اتنا بڑا جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا, ہم وہ ملک ہیں جس نے محنت کی, کوشش کی, گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی, سارے ادارے اکٹھے ہوئے, ہم نے اپنے ڈاکٹر سے مسلسل مشورے لیے ہر روز. ہم نے وہ کام کیا جو بڑے کم دنیا کے ملکوں میں کیا, سمارٹ لاک ڈاؤن. بجائے ہم نے اپنے سارے ملک کو بند کر کے اور اس ملک میں غربت بڑھاتے, ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اور آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب اسٹریٹجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی. تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ہمارے یہ جو رضاکار ٹائیگر فورس, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور آف کورس جو ہماری این سی او سی نے جس طرح کی جو فیصلے کیے, تو میں آج اس کے بھی سب کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے, لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جتنی جب باہر جائیں یہ فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں. جدھر پبلک میں ہو, جدھر آپ ابھی اکٹھے جمع ہوئے ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا, یہ ضرور پہنیں. کیونکہ اللہ نے اگر ہماری محنتوں کو نوازا ہے اور اس نے کرم کیا ہے اور ہمیں اس سے عذاب سے بچا لیا, تو اس کے لیے ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماسک نہ پہنیں. اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے, میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی, ہماری بھائی ہیں, میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے ہیں. کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں. تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنیں, اور یہ جو محرم آ رہی ہے اس پہ احتیاط کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی وہ ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے. انشاءاللہ یہ جب عذاب نکل جائے گا, جب اس سے آزاد ہو جائیں گے, تو پھر واپس اسی طرح چلیں گے. لیکن یہ احتیاط کا وقت ہے. اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں ماسک پہن کے. اسلام آباد سے براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے عمران خان شجرکاری مہم کا آغاز کر رہے تھے. وزیر اعظم نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمی تبدیلی کی صورتحال سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پودے لگائیں. یہ ایک جہاد ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. ہمیں اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے, کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی. ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے, ماحول کو صاف رکھنا ہے. اس طرح گندگی میں کمی آئے گی. ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگائے گئے. ٹائیگر فورس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 2 سال میں گندم کی پیداوار کم ہوئی. آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا پاکستان موسمی تبدیلی کی صورتحال سے شدید متاثر ملک ہے. بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے 3 دن کی مسلسل بارش سے تعلقہ دوڑ کے نشیبی گاؤں ڈبو دیے. گھروں میں پانی داخل, فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. تعلقہ دوڑ کے گوٹ فرام آباد, فارسی, حاجی ابوالحسن, زین العابدین اور میر عمر گاہوٹی سمیت کئی گوٹ بارش کے پانی کے زیر آب آ گئے. گوٹ عمر گاہوٹی کے رہائشی پیار علی نے بتایا کہ ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے, جس میں کپاس, چاول اور جوار کی فصلیں شامل ہیں. انہوں نے منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ ہمارے گھروں اور فصلوں سے پانی کو فی الفور نکالا جائے اور ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے.
कंथकोट से खबर शामिल करेंगे। कंथकोट में सिंध हुकूमत की जानिब से रैन एमरजेंसी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सूबाई मशीर मीर एजाज खान झकरानी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी, SSP असद रजा शाह समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर एजाज झकरानी का कहना था कि बिजली, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और महकमा बल्दिया के मसाइल की शिकायत सामने आई हैं। सिंध हुकूमत ने सिंध भर में रैन एमरजेंसी में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए हैं। बारिशों में मुमकिन तबाही से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। कंथकोट जिला भर के मसाइल हल करवाने के लिए वजीर आला सिंध से बात करके हल करवाएंगे। वजीर आला सिंध ने रैन एमरजेंसी फंड जारी कर दिए हैं। फंड्स का कोई मसला नहीं है। सूबाई मशीर मीर एजाज झकरानी ने डिप्टी कमिश्नर पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और महकमा बल्दिया के अफसरान के हमरा मेन हॉल्स और डिस्पोजल का भी दौरा किया। मुल्क भर की तरह लिया में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चांद सितारे से मजीद परचम और बैजिस के खूबसूरत स्टॉल सज गए। मजीद बता रहे हैं वकार एवान अपनी इस रिपोर्ट में। जिला लिया में जश्न आज़ादी की आमद के साथ 14 अगस्त को मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। जगह जगह पाकिस्तानी परचम और बेजर्स और दीगर खूबसूरत चीज़ों के स्टॉल सज गए। नौजवान और बच्चे वतन से मोहब्बत का इजहार के लिए परचम वगैरह ख़रीदने के स्टॉल पर पहुंच गए हैं। दुकानों और मकानों को सजाने के लिए झंडियों और झंडों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया। एक अजीम दिन है और हम इसको बड़ी खुशी और बड़े का मनाते हैं, क्यों हमारे दिलों में इस दिन की बड़ी कदर है। हमारे हीरोज़ की कुर्बानियों की वजह से हमें ये दिन मिला है और हम इसको कोरोना के बावजूद बड़ी खुशी से मनाना चाहते हैं। हमारा दिल है कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करें और ये वो दिन होता है जिस दिन हम हम इजहार कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बावजूद इस साल भी कौम बड़े जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाएगी। बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना जिंदा कौमों की मिसाल है। कैमरा टीम के साथ वकार अमान, JNN न्यूज़ लिया। शुजाबाद से हम खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं शुजाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हदायत पर टाइगर फोर्स असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का आगाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी टाइगर फोर्स के हवाले से डे मनाया गया। टाइगर फोर्स की टीम और यहाँ पर वार्डन पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों से भी अफसरान ने शमूलियत की। इस तरह हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा इस डे के मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को इस तरफ राग़िब करें कि हमने अपने शहरों को साफ़, शफाफ और सरसब्ज़ बनाना है ताकि हम माहौल दोस्त हमारे शहर भी, मुकामी आबादी और रूरल एरियाज़ जितने भी हैं उन सब में इस मुहिम को बढ़ चढ़ के हमने बढ़ाना भी है और पौधे लगाने भी हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है ग्रीन सेल्फ़ी के नाम से। हर शहरी से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वो सेल्फ़ी डाउनलोड भी करें, ऐप डाउनलोड करें और उस पे जो पौधा आप लगाएं उसकी पिक लेके उस ऐप पे आप अपलोड करें ताकि इससे हमारी जो है शहर की जो है पता चले लोगों को इसमें किस कदर उन लोगों की शमूलियत शामिल है और हम इस शहर को इंशाल्लाह सरसब्ज़ और शादाब बनाने में अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे और हर मुमकिन हद तक जाएंगे इसको बेहतर करेंगे। जी, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन के सिलसिले से पाकिस्तान भर में पौधे लगाए जाएंगे और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं CO चीफ ऑफिसर तारिक जावेद कम्बो साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ये क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से टाइगर डे मनाया जा रहा है और आज हम इंशाल्लाह कसीर तादाद में पौधे लगाएंगे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर साहब की ज़ेर सदारत में। और आज टाइगर फोर्स और शुजाबाद के अवाम ने भरपूर शिरकत की है। हर बंदा आज इंशाल्लाह पौधा लगाएगा और पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाएगा। जी, इनका कहना है कि पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है ताकि अब आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। जी, अतीकुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार हवाई खां के करीब तेज रफ्तारी के बाद बस उलट गई। हादसा में 13 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों में से 6 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद घरों को रवाना कर दिया, जबकि बाकी जख्मियों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फैसलाबाद से सातकवाद जाने वाली मुसाफिर बस को तरंडा सवाई खान के करीब खौफनाक हादसा पेश आ गया, जिसमें 13 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 6 मामूली जबकि बाकी शदीद जख्मी होने की इतलात हैं। रेस्क्यू 1122 की 4 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के साथ बाकी अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध के इलाके जोही में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर सैलाबी रेले से मुतासिर, बहुत से गांव सैलाब की लपेट में आ गए। तहसील जोही काछू में तूफानी बरसात ने 2 दिन में मुसलसल बारिशों की वजह से पहाड़ों से आने वाले पानी ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली। मुतअद्दिद घर पानी में डूब गए। 200 से ज्यादा फैमिलीज बेयारो मददगार रोड पर बैठे हैं, ताहाल कोई हुकूमती इदारा मदद के लिए नहीं पहुंच सका। लोधरा की तहसील दुनियापुर में नौजवान लड़की को जहर देकर मारने का इल्जाम, पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO सदर दुनियापुर मलिक इस्माइल के मुताबिक मोहम्मद रफी ने पुलिस को बयान दिया कि इसकी 17 साला बेटी बिस्मा को बहराम खान नामी हमसाये ने जहर देकर कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट बोर्ड्स मेजर जनरल सैयद हसनात आमिर गिलानी ने सरगोदा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मुलाजमीन के लिए जेर तामीर फ्लैट्स का इफ्तिताह किया और कैंट बोर्ड ऑफिस के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट बोर्ड सैयद हसनात आमिर गिलानी ने सरगोदा में कैंट बोर्ड ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड सरगोदा तनवीर अशरफ ने DG को कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के तरक्याती कामों और आवाम की फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मेजर जनरल सैयद हसनात आमिर गिलानी ने कहा, मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में कोशा है। इस मौका पर उन्होंने सरगोदा कैंट के मामलात को बेहतर तरीके से चलाने पर इत्मीनान का इजहार किया। अपने दौरे के दौरान DG ने कैंट बोर्ड मुलाजमीन के लिए तामीर किए जाने वाले फ्लैट्स का इफ्तिताह भी किया। दौरा के दौरान डायरेक्टर मुल्तान रीजन हसन अली लगारी भी मौजूद थे। रुख करते हैं आरिफवाला का, जहां जश्न आजादी करीब आते ही शहर भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सजावटी सामान के स्टॉल सज चुके हैं, जहां शहरी खरीदारी के लिए बच्चों के हमरा पहुंच रहे हैं। मजीद आरिफवाला से मोहम्मद आसिम की ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है और सजावटी सामान के स्टॉल भी सज चुके हैं, जहां पर शहरी अपने बच्चों के हमरा जोश व जज्बा के साथ रंग बिरंगी झंडियाँ, झंडे, बैजेस और दीगर अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल शहरियों में जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज़ मुनफरद दिखाई दे रहा है। जब हमारी चंद ख़रीदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम बच्चों के साथ सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ और दीगर अशिया ख़रीदने के लिए आए हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ जो झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए हूँ, अपने घरों को सजाएंगे। झंडियाँ चीज़ें लेने वास्ते आए हैं बच्चों वास्ते, जी पाकिस्तान बच्चे ने ये दसी है कि 14 अगस्त साढ़े आज़ादी का दिन है। शहरी बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी मनाने के लिए जौकदार जो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, ताकि यौम आज़ादी को शायाने शान तरीक़ा से मनाया जा सके। मोहम्मद आसम, आरिफवाला। सफदराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। इलाका थूथियां कला के रहायशी मेहनत कश अंसर का कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना निकला। सफदराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। सफदराबाद के इलाका मेली बर्जी के रहायशी अली शेर के कत्ल के मुकदमा की पैरवी थूथियां कला के अंसर को महंगी पड़ गई। मेली बर्जी के रहायशी कैसर और मोहसिन ने अपने 2 साथियों के हमरा अंसर को खेतों में काम करते हुए घेरा और अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतारकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल अंसर के कत्ल का मुकदमा सफदराबाद पुलिस ने दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, कश्मीर के नवाही गांव
कादर मजारी में सांप के डसने से 2 सगे भाई जान बहक हो गए। कश्मीर के नवाही गांव में सांप के 15 साला गोदू मजारी और 10 साला अकरम मजारी को डस लिया। दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही दोनों भाई फौत हो गए। लाशों को घर वापस लाया गया तो घर में शोक का समा और हर आंख अश्कबार हो गई। मुसलसल 27 घंटों की बारिश के बाद सांप अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं और लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। बुनेर में टांगों वाला पुल के करीब मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बाद दीवार से टकरा गई। वैन में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन मारतोंग से आ रही थी। तेज रफ्तारी के बाद टांगों वाला पुल के करीब बेकाबू हो गई और दीवार से टकरा गई। मुसाफिर वैन में 10 अफराद सवार थे। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू के 2 एम्बुलेंसेज और मेडिकल टीम मौका पर पहुंच गई। जाए हादसा पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ साथ DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालिया होने वाली बारिशों से दोड़ शहर के मुख्तलिफ इलाके शाही बाजार, रजाबाद, मॉडल कॉलोनी, आरा कॉलोनी के बिजली के ट्रांसफार्मर जल गए। इन तमाम इलाकों में बिजली गायब। वापटा का अमला खाली आश्रय देने लगा। दोड़ शहर के अक्सर इलाकों के बिजली ट्रांसफार्मर जलने की वजह से शहर में बिजली गायब हो गई। शाही बाजार, मॉडल कॉलोनी, रजाबाद के रहायशियों ने वापटा ऑफिस पहुंचकर एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि हमारे ट्रांसफार्मर 3 दिन से जले हुए हैं, जिन्हें वापटा एहलकार उतार कर ले गए हैं, मगर वापस लगाने का कोई नाम नहीं। उन्होंने कहा कि हम अब वापटा ऑफिस आए तो हैं, यहाँ कोई मौजूद नहीं। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बिजली की बंदिश की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हंगू तहसील टल में भी टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौका पर तहसील टल के इलाके आदम बांडा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मुल्क भर की तरह हंगू तहसील टल में भी टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौका पर महकमा जंगलात की जानिब से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। इस मौके पर रेंजर्स ऑफिसर रशीद खान और फॉरेस्टर इकबाल ने कहा, जिला हंगू में सालाना शजरकारी मुहिम के दौरान 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि तहसील टल में 25,000 पौधे लगाए गए। उन्होंने मजीद कहा, दरख्त लगाना सदका जारिया है। जश्न आजादी पाकिस्तानी कौम वलवले और जोशो जज्बे से मनाने की भरपूर तैयारियां कर रही है। बच्चे और बड़े जहां यौम आजादी पर खुश हैं, वहीं कश्मीरियों के साथ भी इजहारी यकजहती कर रहे हैं। रावलपिंडी मरी रोड पर हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या तैयारियां की जा रही हैं 14 अगस्त की। लिया चौक आजम दर्जा चहारम के मुलाजमीन का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। हाथों में रोटियां पकड़कर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लिया में चौक आजम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बराए खवातीन के सामने दर्जा चहारम के मुलाजमीन का एहतजाज। हाथों में रोटी और सालन का खाली बर्तन पकड़कर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सदर पंजाब एप का गुलाम हैदर का कहना है कि वो अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। जी सही मैं तुहाडा अपना नवाज अंजुम ते जनूबी पंजाब वालों एक नवा चैनल लॉन्च थींदा पे JNN। देखना ना भुलाए, इको फटाफट सब्सक्राइब करो, तले उंगली का निशान उसे को पुश करे सो ते सब्सक्राइब थी वैसी से अपने धरती का चैनल होवे ते हाथ ठंडा थी वेंदे। मंठार चैनल वे सोहने सुरीले तक सॉन्ग मिलसन, सोहने सोहने। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, 9 अगस्त टाइगर्स फोर्स डे को शजरकारी से मंसूब करने के वज़ीर-ए-आज़म के अहकाम पर अमल करने में लोधरा भी पेश 80,000 नए पौधे लगा दिए गए। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ की इस रिपोर्ट में। पूरे पाकिस्तान में की जा रही है। ज़िला लोधरा भी पाकिस्तान के उन्हीं अजला में शामिल है जहाँ सरसब्ज़ ज़िला बनाने के लिए तमाम इंतज़ामिया, तमाम समाजी तंजीमें जो हैं वो कोशिश हैं। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट भी जो गुज़िश्ता 2 सालों से लोधरा को सरसब्ज़ बनाने के लिए कोशिश है, और आज उन्होंने 2500 मज़ीद पौधे लगाए हैं। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी ADCR लोधरा सैयद बादशाह और CEO लोधरा पायलट प्रोजेक्ट डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी जी। ये यहाँ पर LPP की तरफ से एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर की गई है जिसमें 2500 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर DC साहब की सरबराही में इंशाल्लाह आज हम तकरीबन 80,000 पौधे लगाएंगे, जिसकी जो एक और तकरीब जो है वो मीरामपुर में राइट नाउ भी हो रही है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम और भी इस टारगेट को इससे भी ज़्यादा अचीव करें। LPP के ख़ास तौर पर मशकूर है कि ये इस अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का हमेशा इनके साथ ताउन रहेगा और इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि LPP जो ये काम कर रही है, इस हवाले से आपके आगे क्या जो है इस वक्त टारगेट्स हैं, और लोधरा में जो है जो माहौलियात की तब्दीली में दरख्त जो किरदार अदा कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट के हवाले से 7th वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है। उस हवाले से आज का दिन बहुत तारीखी है जब मुल्क भर में पौधे लगा रहे हैं, और यहाँ लोधरा में इस हवाले से बहुत अहम है कि हम सब मिलकर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, NGOs यहाँ पर मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मौजूद है, 1122 और टाइगर फोर्स, ये सब हम मिलकर इस कौमी खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जो हमारा प्रोग्राम ये है 2018 से लेकर अभी तक हम तकरीबन 1,25,000 पौधे लोधरा ज़िले में लगा चुके हैं। इस साल जो मॉनसून की ड्राइव है इसमें तकरीबन 80,000 मज़ीद पौधों का हम इजाफा करेंगे, और ये जो हमारा अर्बन फॉरेस्ट है इसमें 14,000 पौधे लग चुके हैं। इसमें हम एक जापान मॉडल पर कोई 2 कनाल पर एक पायलट प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पर 1 एकड़ में 1 मीटर में 3 पौधे लगाने का एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा। सेहत के लिए और इंसानी जानों की हिफाजत के लिए भी जो है दरख्तों लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए।
वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर और बैन अल-मज़ाहब हमांगी बी नूरुल्लाह कादरी ने जिला खैबर तहसील लंडी कोतल जिले इंतजामिया कंपाउंड में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्लीन एंड ग्रीन शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर बी नूरुल्लाह कादरी ने कहा कि जिला खैबर में सालाना शजरकारी मुहिम के दौरान 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि लंडी कोतल तहसील में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पतों की पुरानी गला मंडी में मामूली तख्त कलामी पर झगड़ा, 4 अफराद शदीद जख्मी। कराकरी की दुकान पर तख्त कलामी पर 15 से ज्यादा अफराद ने धावा बोल दिया। नामालूम अफराद की जानिब से उस्तरों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़ा पुरानी गला मंडी में फटा रखने की वजह से शुरू हुआ। झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें आजादाना उस्तरों और डंडों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जानिब से गंदा लोगों का साथ दिया गया और ताजिर पर ही FIR दर्ज कर दी गई, जिसके नतीजे में दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए मुतअद्दिद मार्केट्स बंद कर दी। जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताजिरों ने मुतालबा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के